Greetings to all. I am Ishan Mahajan, a student of MBA. I have been placed with Linkroot, a company which is perfect for those who want to pursue career in HR. So let's start. फ्रेंड्स, इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू टेलीफोनिक राउंड्स में हुआ है। नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि कंपनीज में इंटरव्यू के 3 राउंड्स होते हैं। पहला एप्टीट्यूड, दूसरा जीडी राउंड और तीसरा पीआई राउंड, जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी बोलते हैं। पर गाइस, क्योंकि अभी बाहर पेंडेमिक है और फिज़िकली इंटरव्यूज़ नहीं हो सकते हैं, सो कंपनी से साथ मेरा इंटरव्यू टेलीफोनिक राउंड के थ्रू हुआ है, जिसमें उन्होंने मुझसे मेरे रेज्यूमे, मेरे खुद के बारे में और मेरे एक्स फैक्टर, मेरी क्वालिटीज़ के बारे में बात करी और मेरा इंटरव्यू किया। गाइस, मेरा 3 राउंड्स में इंटरव्यू हुआ है और मुझे बहुत खुशी है शेयर करते हुए आपके साथ कि फाइनली मुझे इस कंपनी में प्लेसमेंट मिला एज अ टैलेंट सर्च एंड क्लाइंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अचीव अ लॉट मोर इन माई करियर इन द फ्यूचर। थैंक यू। अब गाइस, मैं बात करूँगा जो द स्किल सेट्स यू मेंशन, whether technical or non-technical, your internships, the projects undertaken, and the most importantly, your personal attributes. Most of the percentage of job seekers, that is freshers, less focus on it. But guys, let me tell you this. All these things add a lot of weightage to your resume and your personality as well. So, personal attributes can be anything like excellent communication skills, hardworking, discipline, managing skills, etc. All these are not just to add stars to your resume, but also these should be reflected at the time of your interview. Personally, when I faced the interview with the Linkroot, I kept all these things in my mind and responded accordingly. Next important thing which I took care of was the certifications, accomplishments, accolades, participation certificates, whichever I have mentioned. I am thorough with that. If asked, I could respond and justify all those, because justifying all these things is very much important for a candidate appearing for the interview. Otherwise, it can go wrong and portray a negative impact in front of the interviewer. Next important thing comes is your area of interest, because today all the employers are looking for the candidates, the job seekers, the people who are different in respect to their interests, like their cricket hobbies, which they enjoy doing in their free time. Because companies look for the people who just not only work full-heartedly, and as well they use their time in other things also, which makes them a multitasker. Now guys, I would like you to know few things about the company in which I have been placed. People who know Linkroot also know that it's not just any HR consultancy firm. It's more than that. It actually aids other companies in hiring the best fit for them rather than rehiring. They help in screening, interviewing and selecting candidates as well. गाइस, ये फर्म एक ऐसी फर्म है जो अदर कंपनीज को भी बहुत तरीक़ों से हेल्प करती है। ना कि सिर्फ जॉब्स ऑफ़र करना, इंटर्नशिप ऑफ़र करना, वो लोग ये भी मदद करते हैं कि आपको एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले, ताकि जब भी आप उनसे कांटेक्ट करें आप एक ही कंसर्न पर्सन से बात कर पाएँ, आपको अलग अलग पर्सन के साथ बात करने में डिफ़िकल्टी फील ना हो। ये वो मेक श्योर करते हैं। और सबसे आखिर में आइसिंग ऑन द केक के रूप में वो आपको रीलोकेटिंग में भी मदद करते हैं। गाइस, आज के ज़माने में कैंडिडेट्स को रीलोकेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। वे ये सोचते हैं कि उनको जॉब तो मिल गई है, बट वे रहेंगे कैसे, जॉब मतलब कहाँ पे करेंगे जैसे, या उनको खाने का कैसा होगा। तो वो कंपनी आपको हर तरह से मदद करती है रीलोकेट करने में। सो in total, working with this firm is actually a nexus of ambition.
जिसको हम हिंदी में महत्वाकांक्षा की गठरी भी बोल सकते हैं। अब गाइस मैं बात करूँगा जो प्रोफाइल मुझे ऑफ़र हुई है, जो कि है टैलेंट सर्च एंड क्लाइंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। इसमें मैं आपके साथ कुछ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, ताकि जब भी आप इस प्रोफाइल के लिए या किसी भी कंपनी में अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे उस समय जस्टिफाई करने के लिए भी कि आप प्रोफाइल से गो थ्रू हैं और आपको ये पता है कि आपको इस प्रोफाइल में क्या रोल मतलब प्ले करना रहेगा, आपके क्या टास्क होंगे, आपके रोल्स, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप इस प्रोफाइल के लिए अपीयर होंगे तो आपके रोल्स क्या क्या होंगे। तो पहला रोल होगा आपका, जैसे आपको सोर्सिंग करनी पड़ सकती है, आपको स्क्रीनिंग करना होगी, आपको इंटरव्यूज़ कोऑर्डिनेट करने होंगे, आपको डिटरमाइन करना होगा एप्लीकेंट्स की रिक्वायरमेंट बाय स्टडिंग देयर जॉब डिस्क्रिप्शंस विच इज़ जेडी एंड देयर जेक्यू जॉब क्वालिफिकेशंस, determining their applicants determining applicants qualification by interviewing them, analyzing their responses etc. गाइज आपको हेड हंटिंग भी करना पड़ेगी, जिससे आप सूटेबल कैंडिडेट को खुद से अप्रोच करोगे। ये नहीं होगा कि कैंडिडेट आपके से अप्रोच कर, आपको भी हेड हंटिंग करनी पड़ेगी। हेड हंटिंग बेसिकली मतलब यही होता है कि आप प्रोएक्टिव हैं, आप आगे रह के अप्रोच कर रहे हैं कैंडिडेट को। तो ये आपके एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। आपको इसमें नेगोशिएट करना भी सिखाया जाएगा, आपको इसमें पे एंड सैलरी रेट्स भी देखने होंगे, आपको फाइनलाइज करने होंगे अरेंजमेंट्स क्लाइंट और कैंडिडेट्स के बीच में, आपको एक्सपेंड भी करना पड़ेगा बिजनेस एनहेंस रिलेशनशिप को विद कस्टमर्स, एंड यू हैव टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एनहेंस सेल्स परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, coordinate meetings, calls and communication between management and clients, so that at the time when you are required to say all this or present a report on this, you are well versed with this, आप इसके साथ अच्छे से go through हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ। अब कुछ एक ऐसे रिमेम्बरिंग पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि गाइस, we must be clear when we are asked why we want to come in this firm or join this firm. People go hayward in this situation. उनको पता नहीं होता कि उनको इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, तो वो हर कुछ जो भी उनके माइंड में आता है वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं। गाइस, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपका पूरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, बट अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी बोल दी तो वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा, और इंटरव्यूअर के मन में भी एक ये चीज़ आएगी कि ये कैंडिडेट जो आया है, इंटरव्यू आया है मेरे सामने, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये हर कुछ बोले जा रहा है या ये रट के आया है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स बहुत तरीक़ों का हो सकता है। जैसे मैं आपके साथ दो एक रिस्पॉन्सेस शेयर करना चाहूँगा। लाइक इट कैन बी, आई हैव गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट एसोसिएटेड विद सच अ ग्रोइंग स्टेज कंपनी। द अपॉर्चुनिटी आई वॉज वेटिंग फॉर so much time. I finally got this opportunity and I am looking forward to grab this. तो ये कुछ रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं जो आप दे सकते हैं। बेस्ट तो ये होगा कि जो आप यूनिक रिप्लाई दे सके बट उसको जस्टिफाई कर सके, इट शुड बी ओरिजिनल, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ दो एक क्वेश्चन और शेयर करना चाहूँगा एक्सपीरियंस के रूप में जो मेरे साथ हुए। जैसे कि कंपनी ने मुझसे पूछा था कि वाई शुड वी हायर यू, और where do you see yourself down the line 5 to 10 years. So guys, इसके भी responses differ कर सकते हैं कैंडिडेट से कैंडिडेट पे, but few responses can be which actually the recruiter wants to analyze in you or monitors you is your capability, your leadership quality, your mental strength, your presence of mind. That is your attentiveness. Are you attentive at that situation, or you are being physically present over there, और आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये रिक्रूटर एक बार में पॉइंट आउट कर लेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 5 से 10 साल आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो ये इसके रिस्पॉन्सेस भी डिफ़र कर सकते हैं। बट एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि अगर मैं हार्ड वर्क करता हूँ और मैं आपके साथ एसोसिएटेड रहता हूँ, तो डेफिनेटली कंपनी तो ग्रो करेगी ही करेगी, साथ में मैं भी ग्रो करूँगा। तो ये म्यूचुअल ग्रोथ होगी और कंपनी के गोल्स अचीव हम कर पाएंगे साथ में हार्ड वर्क करके। तो एक तरह का रिस्पॉन्स ये हो सकता है। गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू एड a few things which I actually did for my interview as well and would like to suggest to you all, which is domain facts. Friends, you are appearing for a post of HR.
or whatever field like finance, marketing, you should be well versed with the domain facts. I mean, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड के उसके इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं तो वो उस फील्ड के बारे में आपको फैक्ट्स पता है कि नहीं। जैसे आप फाइनेंस के लिए बैठे तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड फैक्ट्स पता है कि नहीं, कि आज बाहर सिचुएशन क्या है, क्या फैक्ट्स हैं, किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फाइनेंस में क्या चल रहा है अभी। या आप एचआर में तो आपको एचआर के बारे में आप पता होना चाहिए कि एज एचआर आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, एचआर क्या काम करता है, एचआर के टास्क क्या होते हैं। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एचआर एक बहुत ही एलिट क्लास जॉब है। इट्स एक्चुअली अ वाइट कॉलर जॉब। बहुत कम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो इस फील्ड में जॉब करते हैं। तो ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि आप पूरे फैक्ट्स के साथ तैयार रहें। So, friends, whenever you are appearing in the interview, you should be aware of the whole of your whole resume, your profile, the company facts, the company's about part, because guys, these facts add a lot to your resume and can prove a best part for your selection, a step forward for your selection. Guys, domain knowledge is one of the key to crack the interview. Like what actually HR is, what role HR plays, which I was sharing a few minutes back, attributes of HR and etc. If you are aware of some facts, figures of the field you are appearing for in your job, this actually adds stars towards your selection. Being an HR applicant या और कैंडिडेट, आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या एब्रीविएशंस, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। लाइक आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू एग्जांपल्स। इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर अ एचआर इंटरव्यू, आपको ये पता होना चाहिए कि एचआरए क्या होता है, केपीए क्या होता है। एचआरए मीन्स हाउस रेंटल अलाउंस, केपीए इज़ की परफॉर्मेंस एरियाज, देन केआरए की रिजल्ट एरियाज, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, JS job specifications. And today many people know C cadre profiles as well, but many not. So what C cadre profiles are? You must be well versed with this. आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि C cadre जॉब क्या होते हैं। जैसे COO होता है, CXO होता है, CTO होता है, CIO होता है, CEO होता है। तो आपको C cadre जॉब्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि किसका क्या प्रोफाइल होता है और कौन जॉब किस टाइप से करता है, उसके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, कौन किसको गाइड करता है, कौन किसके लिए पॉलिसी बनाता है, कौन किसका KPA KRA चेक करता है, मॉनिटर करता है। गाइस, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही कुछ एक फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको दूसरों से अलग स्टैंड आउट करते हैं इंटरव्यू में। क्योंकि रिक्रूटर को, इंटरव्यूअर को ये पता होता है कि आप जिस पोजीशन के लिए आए हैं या जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करके तो आए ही होंगे। ये उसको ऑब्वियस सी बात होती है, उसको पता होती है। तो गाइस, आपको ये कुछ एक एडिशनल चीज़ें होती हैं जो आपको अलग बनाती हैं। देन यू मस्ट नो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड एटसेट्रा आर देयर। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ही सही। गाइस, मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करने आऊँगा एज वी आर अप्रोचिंग टू द लास्ट ऑफ द वीडियो। You interview cannot fool an interviewer, as he is very well experienced, knowledgeable person who in seconds can catch the person who is trying to bluff through some facts. So it's better for an interviewee to speak only that much which he or she can handle, is true and is known to him or her at the time of interview. So friends, कुछ जनरल फैक्ट्स भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंटरव्यू सिलेक्शन में। इंटरव्यूअर बहुत अच्छे से जानता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्रोफाइल्स और कंपनी के फैक्ट्स के बारे में तो पता करके आए ही होंगे, बट वो कई बार आपकी जनरल नॉलेज, आपकी करंट अफेयर्स नॉलेज, फैक्ट्स फिगर्स, आपकी फील्ड, आपकी इंडस्ट्री, उन सब के बारे में जानने के लिए वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि आपको ये पता होंगे, और यही चीज़ें आपको सिलेक्शन के और करीब ले जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपके साथ कुछ की टेक अवेज या पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल सकते हैं, वो शेयर करना चाहूँगा, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल प्रूव कर सकते हैं एंड दैट कैन एड अ लॉट टू योर इंटरव्यू सिलेक्शन। सो पहला पॉइंट है, फुल्ली नो अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए, आपके रेज्यूमे के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी कंपनी, आपको कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, कंपनी कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है, किस बिजनेस में है, उसके क्लाइंटेल क्या हैं,
वो किस टाइप से ऑपरेट करते हैं, और उसके बारे में अदर फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि आप जिसके लिए अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, तो कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कि उनकी प्रोफाइल क्या है और वो क्या काम करने का उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी, तो उनको आपको पता होना चाहिए। सम फैक्ट्स अबाउट योर फैक्ट्स फिगर्स अबाउट योर फील्ड, अबाउट डोमेन, अबाउट इंडस्ट्री, ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ही है। टर्मिनोलॉजीज बीइंग यूज्ड, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, वो आपको पता होना चाहिए। आपसे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की उम्मीद होती है कि आप कहीं भी जाते हैं तो एक आपको कोई भी फर्स्ट टाइम देखता है कि आपसे बात करता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप क्या उसको कन्विंस कर सकते हैं, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स कैसी है, आपकी परसुएशन स्किल्स कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स गुड होनी चाहिए। आपके अंदर एक सीखने की वो होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, आपको हंगर टू लर्न होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और आपके सामने अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो आप उसको टैकल कैसे करेंगे, वो आपके अंदर एक होनी चाहिए सिचुएशन। और सबसे आखिर और सबसे इम्पोर्टेंट सभी में, आपके अंदर ऐसा क्या एक्स फैक्टर है जो आपको दूसरों से अलग करता है, विद द फैक्टर विच सेपरेट्स यू फ्रॉम रेस्ट एंड यू कैन प्रूव योर बेस्ट। सो गाइस, ये कुछ एक बातें थी जो मैं आपके साथ अपना शेयर करना चाहता था, अपना एक्सपीरियंस लिंकरूट के साथ जो मेरा रहा। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। सो गाइस, थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक्स टू ऑल दी listeners who have listened to my video. And last but not the least, I would like to thank once again my parents, the almighty faculty members, friends, and Fresh Learning Academy for providing me such a wonderful opportunity to interact with you.